Welcome to my channel. On my channel, as you know, I will be uploading the lecture notes for various lectures pertaining to this BTech Electrical Engineering affiliated to RTU Kota. So currently the series I am uploading the lectures on is for the subject Power Quality and Facts. It is a subject of 7th SEM BTech Electrical Engineering, and I have already uploaded 13 lectures in the series. This is the 14th lecture and we are talking about Unit 7 in this particular lecture, DStatCom. So if you see in the lecture, you must know what are the requirements of DStatCom, what are the theories you have to study. There is a schematic, I will tell you. Then instantaneous, there are three theories. So these three theories will be studied one by one. And while studying the synchronous reference frame theory, there is a topic in your syllabus, synchronous reference frame based extraction of currents. So how do we do that? I'll be explaining this just after the theory description, so that it will be more clear to you. Then reactive power compensation is there. This is the first topic in this chapter, but I'll be summarizing you all these theories, and after that we'll be talking about the reactive power compensation, which is basically done by application of IRP theory. So it is done for three-phase, three-wire system. If you want to do it for three-phase, four-wire system, the theory has to be modified for a certain extent. And then there are some current control techniques we'll be talking about. So there are some requirements like the system voltage and current measurement should be done beforehand. जब हम स्टैटकॉम को लगा रहे हैं, there should be some compensating signal calculation. कितना सिग्नल चाहिए करंट का in terms of active power and reactive power. Some generation of controlling pulses must be there. How do we do that? So there are basically three theories we implement for doing all these things. This is instantaneous reactive power theory, synchronous reference frame theory and unit template method और theory. तो DStatCom का बेसिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक सोर्स है, एक लोड है और एक कंपनसेटर है, और इसको हम लगा देते हैं कंपनसेटर को. इस कंपनसेटर की जगह अगर हम DStatCom लगाएं, हाउ डज इट इम्प्रूव? बाय इंजेक्शन ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट and certain amount of power and controlling the reactive power injection as well as absorption. So if you see a DStatCom, it is a voltage sourced converter. ये सिर्फ एक voltage sourced converter है. तो VSCs हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ये सारे जितने भी कन्वर्टर्स हम पढ़ रहे हैं, सेकेंड जनरेशन थर्ड जनरेशन डिवाइसेस, फैक्ट डिवाइसेस, ये VSC बेस्ड होते हैं. सेकेंड जनरेशन में ये VSC बेस्ड हैं with the advanced thyristor, and if we talk of the third generation, this is the combined operation of the converters. तो combined operation के लिए हमने UPFC, IPFC सब पढ़ा, और अब UPQC भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. DStatCom is a second generation fact devices which is realized by using voltage sourced converters. तो अगर हम इसको ग्रिड पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसका एक स्कीमेटिक बनाया है ये. तो यहाँ पर अगर थ्री फेज लोड लगा हुआ है, इट इज डन, डू रिमेम्बर दैट दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटकॉम. इट इज कनेक्टेड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन साइड. हम ट्रांसमिशन फैक्ट्स पढ़ चुके हैं, ये डी फैक्ट्स का एक पार्ट है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे लगा हुआ है जहाँ पर लोड है. तो लोड है और ये यूटिलिटी साइड है जहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं एनर्जी. डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कॉम है, यू कैन से इट इज अ डिस्कॉम, एंड दिस इज DStatCom. तो DStatCom में ये VSCs ही लगे होते हैं. ये सारे VSCs हैं. जहाँ पर ये स्विचेस हैं, these are the advanced thyristors in anti-parallel with the diodes. You have already studied about the valve operation, और ये मैंने पहले भी 4th यूनिट में समझा दिया था. कंट्रोल एल्गोरिथम लगाने के बाद हम कंट्रोल करते हैं सारे पैरामीटर्स को. एंड इफ वी सी हाउ what is the instantaneous reactive power theory? Instantaneous reactive power theory is based on conversion of quantities from three phase to two phase. तो टू फेज अल्फा बीटा फ्रेम होता है और क्लार्क्स ट्रांसफॉर्म हम इसे कहते हैं. इसके लिए जो मैट्रिक्स हम यूज करते हैं ABC से अल्फा बीटा में कन्वर्ट करने के लिए, उस मैट्रिक्स को हम क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहते हैं. तो इसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्टिव और रिएक्टिव पावर की कैलकुलेशन की जाती है और ये अप्लाई किया जाता है ट्रांसफॉर्म ऑन द इक्वेशंस ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ताकि हम गेट सिग्नल्स के लिए जो हमें करंट चाहिए, VSCs में जो गेट सिग्नल्स लगाने हैं एडवांस्ड थायरिस्टर्स पे, वो करंट सिग्नल्स हम निकाल सकें और वो फिर अप्लाई कर सकें. उसी के हिसाब से हमारी कंट्रोलिंग होगी. तो एप्लीकेशन इसका जनरली रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में किया जाता है IRP का.
इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर थ्योरी का। तो एक ब्लॉक डायग्राम से अगर इसे समझाएं तो हमने क्या किया कि ये जो लोड एंड पे करंट्स हैं इनको 3 फेज टू 2 फेज कन्वर्जन से हमने ABC से अल्फा बीटा डोमेन में कन्वर्ट किया यूजिंग क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या होती है आगे वाली स्लाइड्स में बता दूंगी मैं। और फिर यहाँ पर जो VA/VB वोल्टेज सिग्नल्स थे, वोल्टेज सिग्नल्स को भी अल्फा बीटा डोमेन में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन। और फिर इससे पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर हमने निकाला, उनसे लो पास फिल्टर से पास करके करंट के सिग्नल्स निकाले। वो सिग्नल्स वापस से रिवर्स क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन से कन्वर्ट करके जो सोर्स रेफरेंस करंट्स चाहिए जो हमें गेट पे अप्लाई करने हैं वो करंट्स निकाले। और हिस्टैरिसीस बेस्ड PWM करंट कंट्रोलर से कितने सिग्नल चाहिए हमें तो वो हमें बाइफरकेट करने पड़ते हैं। तो PWM करंट कंट्रोलर, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट PWM टेक्निक और कैसे हम उनसे गेट सिग्नल्स निकालते हैं, ये मैंने पिछले एक लेक्चर में कंपाइल कर दिया है। और इससे स्विचिंग सिग्नल्स आते हैं सारे, और ये स्विचिंग सिग्नल्स इन्वर्टर की साइड में, वोल्टेज सोर्स्ड इन्वर्टर, या क्योंकि उसे कन्वर्टर कहते हैं बिकॉज इट गिव्स बोथ द ऑपरेशंस ऑफ एन इन्वर्टर एज वेल एज अ रेक्टिफायर। ये थी IRP थ्योरी। IRP थ्योरी को हम अप्लाई करेंगे आगे रिएक्टिव पावर कंपनसेशन में, है ना। तो क्योंकि इसका हमने एप्लीकेशन एरिया देख लिया था, ये वही था, तो ये आगे पढ़ेंगे। अभी हम दूसरी थ्योरी पे आते हैं, सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम थ्योरी। सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम थ्योरी में SRF में हम क्या करते हैं, ABC डोमेन से DQ0 डोमेन में हम ले आते हैं, और ये सिंक्रोनस रोटेटिंग DQ डोमेन कहलाता है। तो इसमें जो तीन करंट्स हैं, जो तीन करंट्स हमें निकालने हैं, लोड करंट्स, लोड पे जो जाने चाहिए कंपनसेटर की साइड से, वो निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे गेट के ऊपर सिग्नल्स देने पड़ेंगे। थायरिस्टर के जो गेट टर्मिनल्स हैं उन पे सिग्नल्स देने पड़ेंगे। तो गेट सिग्नल्स जनरेट करने के लिए मैं क्या करूंगी, करंट की साइन और कोसाइन सिग्नल्स को जनरेट करेंगे PLL से, इनको DQ0 रेफरेंस फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे ABC फ्रेम से, और फिर इनमें जो हमें फिल्टरिंग करनी है, जो एडिशन करना है, वो एडिशन करने के बाद वापस से ABC फ्रेम में इनको कन्वर्ट करेंगे। और फिर हम इसे हिस्टैरिसीस बेस्ड सिग्नल जनरेटर से पास करते हुए स्विचिंग सिग्नल्स निकालेंगे जो कि हमें गेट टर्मिनल्स पे देने होंगे उस VSC में, हर थायरिस्टर पे, हर एडवांस थायरिस्टर पे। इसका एप्लीकेशन एरिया मेनली टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन THD पे होता है, कैसे रिड्यूस करें, और लोड इम्बैलेंसेस को कैसे रिड्यूस करें। तो इसका ब्लॉक डायग्राम अगर पढ़ें तो ये लोड के करंट्स हैं जिनको हम 3 फेज से कन्वर्ट करते हैं क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन में, और फिर एक PLL लगा हुआ है, साइनोसॉइडल साइन और कोसाइन सिग्नल जो हमने अभी पढ़े, उनको कन्वर्ट कर देते हैं DQ0 डोमेन में यूजिंग पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन, फिल्टर से पास करते हुए रिवर्स पार्क्स और रिवर्स क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन करके हम एक रेफरेंस करंट्स निकालते हैं। उन रेफरेंस करंट्स को हिस्टैरिसीस बेस्ड PWM करंट कंट्रोलर, क्योंकि PWM टेक्निक से तुम्हें गेट सिग्नल सेपरेट करने पड़ेंगे हर गेट के लिए, क्योंकि 6, अगर हम 3 फेज कन्वर्टर की बात कर रहे हैं और 6 पल्स कन्वर्टर है, तो फिर हमारे पास 6 थायरिस्टर वॉल्व्स हैं, एडवांस थायरिस्टर वॉल्व्स, उन पे 6 गेट सिग्नल्स मुझे चाहिए, तो वो अलग अलग निकालने। अब ये समझना है कि ये जो हमने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन किया है ABC से DQ0 डोमेन में, ये पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अभी हमने यूज की है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अगर हम सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्रेम की बात करते हैं तो पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी यूज हो सकती है, और एक क्रॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स भी यूज हो सकती है। तो जो मैंने बुक रेफर की है KR पडियार की, उसमें क्रॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स दी हुई है, और पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जब तुम्हें यूज करनी है तो सिंक्रोनस मशीन के लिए यूज की जाती है, क्रॉन्स मैट्रिक्स इंडक्शन मशीन के लिए यूज की जाती है। There can be other examples also, like devised by Stanley, devised by Brayton and Cross theory. तो ये arbitrary reference frame में होता है, Brayton rotor reference frame for induction machine, and Stanley it is a stationary reference frame, not the rotating one, for the induction machine. So depending on the application, we can take a particular transformation matrix for synchronous reference frame theory application. तो अब ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमने बात की, कितनी तरह की हो सकती हैं। अब उसमें से जो अप्लाई की जाती हैं इन जनरल फॉर द सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम, सिंक्रोनसली रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम, तो 2 अप्लाई की जाती हैं, पार्क्स और क्रॉन्स। तो पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये होती है, इसका इनवर्स निकाल लो, ये आ गया। क्रॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये है, ये KR पडियार की बुक में भी दी हुई है। इनवर्स क्रॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स निकालनी है तो मेरे हिसाब से इनवर्स निकाल सकते हैं, इवैल्यूएट इट because you know how to calculate the inverse, you have the formula.
अब अगर हम सिंक्रोनस रेफरेंस फ्रेम थ्योरी बेस्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ करंट्स, एक टॉपिक है तुम्हारे सिलेबस में, ये पढ़ें तो हमने एक ब्लॉक डायग्राम पढ़ा, ये पूछा जाए अगर एग्जाम में तो इसमें ब्लॉक डायग्राम बताओ। ब्लॉक डायग्राम बताने के बाद इसमें एक प्रोसेस बताना होगा, वो प्रोसेस इस ब्लॉक डायग्राम से ही क्लियर है। हमें एक्सट्रैक्शन करना है, एक्सट्रैक्शन यहाँ तक हुआ है। इस एक्सट्रैक्शन के बाद इन करंट्स को हम PWM करंट कंट्रोलर से पास करते हैं ताकि हमें वो पल्सेस मिल सकें, जो पल्सेस हम पर्टिकुलर गेट सिग्नल्स पे फीड करते हैं। तो यहाँ तक जो एक प्रोसेस मैंने बताया वो प्रोसेस आएगा SRF थ्योरी बेस्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ रेफरेंस करंट्स या सोर्स करंट्स। तो यहाँ तक का प्रोसेस वही है, तो इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना, जो बताया था वही लिखना है। उसके बाद हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जब हम इसे समझा रहे हैं लिखते हुए तो हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होती है, इनवर्स क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या है, और रेफरेंस करंट्स हमने कैसे निकाले क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन से। IL अल्फा IL बीटा निकाला है फ्रॉम ILA ILB ILC, यानी ABC फ्रेम से हमने अल्फा बीटा फ्रेम में करंट्स को एक्सट्रैक्ट किया है। अभी इनवर्स क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन जो कि हम आगे लेटर स्टेप में करते हैं आफ्टर पासिंग इट थ्रू द फिल्टर, उससे हमने इसे वापस अल्फा बीटा डोमेन में कन्वर्ट कर दिया। फिर अल्फा बीटा डोमेन से हम DQ0 डोमेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये इस रिलेशन से कर देते हैं। तो इनमें जो जो चीजें चाहिए, ये ISD ISQ DQ डोमेन में जो हम वैल्यूज ले रहे हैं वो कहाँ से आई, वो यहाँ से आई। तो इनवर्स क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर बताया हुआ है, पार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन और क्रॉन्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स प्रीवियस स्लाइड में है। ये सब कुछ बता के प्रोसेस बताओगे, और ये पूरा प्रोसेस बताने के बाद रेफरेंस करंट्स एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं, बस इतना बताना है। दिस विल समराइज दिस टॉपिक, और ये पूछा जाता है अगर तो इसमें पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करके यू हैव टू राइट द पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस आल्सो। नेक्स्ट मेथड, हमने दो मेथड्स पढ़े, दो थ्योरीज पढ़ी, IRP थ्योरी SRF थ्योरी। तीसरी थ्योरी है यूनिट टेम्पलेट थ्योरी। तो यूनिट टेम्पलेट मेथड में हम क्या करते हैं, रेफरेंस करंट जो निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोर्स करंट्स पढ़ा था ना, तो सोर्स करंट मतलब रेफरेंस करंट जो हम निकालते हैं वो यूनिट टेम्पलेट से निकालते हैं, जो कि PCC वोल्टेजेस से मिल रहे हैं। PCC पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग वोल्टेजेस। तो पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग वोल्टेजेस से हम कैसे निकालेंगे, दो तरीके हैं, या तो जो हम रेफरेंस वोल्टेज निकाल रहे हैं वो PCC वोल्टेज के फेज में होंगे, तो VAP ABC तीन फेजेस हैं, तो VAP VBP VCP ये निकालोगे, डिवाइड करोगे बाय द पर्टिकुलर रेफरेंस वोल्टेज जो हम ले रहे हैं PCC वोल्टेज। इन क्वाड्रेचर, ये क्वाड्रेचर में भी हो सकते हैं PCC वोल्टेजेस के जो हम रेफरेंस वोल्टेजेस निकाल रहे हैं। तो क्वाड्रेचर में जो है उनके लिए तीन फेज के तीन वोल्टेज है VAQ, ये इन फेज है तो P का मतलब है सबस्क्रिप्ट P मतलब इन फेज, और VAQ ये Q का मतलब है इन क्वाड्रेचर। तो VAQ VBQ VCQ will be given by VBP plus VCP minus of divide by √3, similarly for these two। तो आउटपुट इसमें हम क्या करते हैं, PI कंट्रोलर लगा के रखते हैं, उस PI कंट्रोलर का आउटपुट एक बेस देता है। पहले तुमने ये करंट्स निकाल लिए, उसके बाद PI कंट्रोलर का जो आउटपुट है वो हमें एक बेस देगा कि हम इन फेज कंपोनेंट कैसे निकालें, अगर हम इन फेज कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो। उसके बाद यूनिट टेम्पलेट्स को कैलकुलेट किया जाता है, थ्री फेज इन फेज कंपोनेंट्स, ये जो इन फेज की बात कर रहे हैं तो इसी में थ्री फेज कंपोनेंट्स इसके निकाले जाते हैं रेफरेंस सोर्स करंट्स के। ये वोल्टेजेस के सिग्नल्स हैं, इनसे सोर्स करंट्स निकाले जाते हैं। फिर पल्सेस जनरेट होती हैं, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन किया जाता है ताकि वो पल्सेस इंडिविजुअल गेट टर्मिनल्स पे, थैरिस्टर के इंडिविजुअल गेट टर्मिनल्स पे फीड की जा सके। ठीक है, तो ये कंट्रोल ऑपरेशन है यूनिट टेम्पलेट मेथड थ्योरी के एप्लीकेशन के बाद। अब नेक्स्ट टॉपिक जो तुम्हारा आता है रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, ये फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, पर इन थ्योरीज के बिना तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्योंकि हम इसमें IRP थ्योरी लगा रहे हैं। तो IRP थ्योरी जो लगती है 3 फेज 3 वायर सिस्टम पे लगती है। अगर 3 फेज 4 वायर सिस्टम पे लगानी है तो इसे मॉडिफाई करना पड़ता है सर्टेनली। तो इट इज नॉट इन योर सिलेबस, विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली 3 फेज 3 वायर सिस्टम। तो कंपनसेटर की अगर बात करें, कंपनसेटर में इंस्टेंटेनियस रिएक्टिव पावर विल बी गिवन बाय Q V अल्फा I बीटा माइनस V बीटा I अल्फा। बैलेंस्ड सप्लाई अगर है तो इसका मतलब कि करंट्स भी बैलेंस्ड होंगे। तो अगर वोल्टेजेस बैलेंस्ड है, लेट अस से VA VB VC आर दीज,
In correspondence to these, the currents IA, IB and IC will be given by these equations. टोटल पावर जो हमें मिलेगा वो पावर ये मिल जाएगा, और अगर हम वोल्टेज निकालें, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड RMS वैल्यू VA स्क्वायर VB स्क्वायर VC स्क्वायर का अंडर रूट, तो वो ये हमें मिल जाएगा. करंट करस्पॉन्डिंग to the production of active power will be IP. Current corresponding to the production of reactive power will be IQ. तो IP अगर ये है, IQ will be total current minus IP. और IQ रिएक्टिव करंट से हमें मतलब है, क्योंकि रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं इस IRP थ्योरी को, और वो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन हो रहा है T स्टैटकॉम पे. तो अब ये IQ जो हम निकाल रहे हैं ये पर फेज निकलेगा, IQA, IQB, IQC. तो इसको पर फेज डिवाइड कर दिया. टोटल रिएक्टिव पावर जो हम दे रहे हैं स्टैटकॉम से, लेट इट बी स्मॉल q, वो q है ये वाला V अल्फा I बीटा माइनस V बीटा I अल्फा. तो IQA हो जाएगा √2/3 q/v साइन ओमेगा नॉट t. इसी तरीके से IQB, IQC ये बस एंगल में डिस्प्लेस हो जाएंगे, -120 डिग्री, -240 डिग्री डिस्प्लेस रहेंगे. तो कंपनसेशन अगर करोगे ऐसे कन्वर्टर से, ऐसे डी स्टैटकॉम से जिसमें एनर्जी स्टोरेज नहीं है, तो VTIQ विल बी इक्वल टू 0, कोई एनर्जी स्टोरेज नहीं है. और अगर एनर्जी स्टोरेज होगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी. तो IRP 3 फेज 3 वायर सिस्टम पे ही एप्लीकेबल है, ये बस ध्यान रखना है तुम्हें. अब अगर हम रिएक्टिव पावर कंपनसेशन IRP से कर रहे हैं तो कुछ हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं. IRP थ्योरी हमने पहले पढ़ी, तो उसमें जो जो अप्लाई हो रहा है प्रोसेस, उसमें अगर हम क्लार्क्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो उसमें अल्फा बीटा डोमेन में हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. तो अल्फा बीटा अगर सपोज हम वोल्टेज और करंट सिग्नल्स पे लगा रहे हैं, तो स्मॉल f बताएगा उस वोल्टेज को या करंट सिग्नल को, इंस्टेंटेनियस वैल्यू. स्पेस वेक्टर fs will be f alpha minus j f beta. This is the vector in alpha beta domain, क्लार्क्स डोमेन. तो f अल्फा आ जाएगा √2/3 fa माइनस 1/2 fb माइनस 1/2 fc. f बीटा आ जाएगा √2/3 माइनस √3/2 fb प्लस √3/2 fc. तो ये f अल्फा f बीटा जो निकालोगे, इससे वोल्टेज और करंट दोनों पे अप्लाई करके इससे हमें टोटल पावर मिल जाएगा, अपरेंट पावर, दैट इज इक्वल टू P प्लस JQ. फाइंड इट आउट. अप्लाई दिस ऑन वोल्टेज एंड करंट एंड यू विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन. फिर वोल्टेज और करंट इस इक्वेशन में जो मिले वो ये मिले. एक्टिव और रिएक्टिव कंपोनेंट जो करंट के होंगे वी विल फाइंड आउट बाय यूजिंग दिस IRP थ्योरी. तो IP और IQ जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कैसे निकालेंगे, तो IP की वैल्यू, ये जो इक्वेशन है ये वाली पावर की इक्वेशन, ये पावर की इक्वेशन डिवाइड बाय वोल्टेज, एंड दैट वोल्टेज मस्ट बी इन अल्फा बीटा डोमेन. तो ये अल्फा बीटा डोमेन से PQ डोमेन की बात कर रहे हैं, अल्फा बीटा डोमेन से PQ डोमेन में कन्वर्जन है एक तरीके का. तो यहाँ से IP निकाला और IQ निकाल लिया सिमिलरली. So after finding out the currents which are required for the production of active power as well as the reactive power by this STATCOM, हमें ये फाइंड आउट करना है कि कंपनसेटर यानी स्टैटकॉम के करंट्स कितने आ रहे हैं, ICA, ICB, ICC कितने होने चाहिए. तो वो हमने निकाल लिए. तो ये अप्लाई करके हमने ये देखा कि IRP थ्योरी से हम रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कैसे कर सकते हैं, कितना करंट, रेफरेंस करंट्स क्या होंगे, एक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट, रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ करंट क्या होगा, और उसके अलावा कंपनसेटर के जो करंट्स है वो क्या होंगे. लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में करंट कंट्रोल टेक्निक्स. तो उसके करंट कंट्रोल टेक्निक्स जो हम लगाते हैं वो सिर्फ देखो PWM टेक्निक से ही निकलेगी, क्योंकि PWM में हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, कुछ पल्सेस निकालते हैं, उन पल्सेस को गेट सिग्नल पे देते हैं. तो अगर हमें करंट को कंट्रोल करना है तो हम सिर्फ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक से ही कर सकते हैं. सो दीज टेक्निक्स आर ऑलवेज डिवाइस्ड फॉर PWM बेस्ड डी स्टैटकॉम कन्वर्टर्स. जो PWM पे नहीं है उन पे हम ये टेक्निक्स डिवाइस नहीं करते हैं. Therefore, these techniques are known as CCPWM techniques, current control PWM techniques. So the control can be classified into two categories, linear or non-linear, and the switching can be done either by hardware or software. Current ripple और switching frequency हमें ध्यान रखना पड़ता है because there are ripples in current, and the switching frequency must not be as high as so that we are not achieving a good cost to performance ratio. We should have a good cost to performance ratio. Phase interference effect होता है, we need to reduce that, and there is a limit of DC link voltage, so we need to follow that कि उससे ज़्यादा वोल्टेज ना हो जाए, वरना ये कन्वर्टर हमारा खराब हो सकता है. तो करंट कंट्रोल टेक्निक्स जो हम लगा रहे हैं
लगाने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? फेज एम्पलीट्यूड एरर्स नहीं होने चाहिए, बहुत कम होने चाहिए। डायनेमिक रिस्पॉन्स बहुत फास्ट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, हाई मैग्नीट्यूड में भी ज्यादा होना चाहिए। लिमिटेड या कांस्टेंट स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा ना हो तो अच्छा है, वरना कॉस्ट टू परफॉर्मेंस रेशियो जैसे मैंने बात करी हमें नहीं मिल पाता है। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का भी सेफ ऑपरेशन हमें देखना है। बहुत ज्यादा हीटिंग भी नहीं होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा तुमने स्विचिंग कर दी तो हीटिंग हो गई तो खराब हो जाएंगे। लो हार्मोनिक कंटेंट हमेशा कम होना चाहिए। और डीसी लिंक वोल्टेज जितनी भी लिमिट है उसकी पूरी यूटिलाइजेशन होना चाहिए, सो दैट वी आर एबल टू इफेक्टिवली यूटिलाइज इट। और अगर हम CCPWM कन्वर्टर की बात करें, बेसिक ब्लॉक डायग्राम, तो ये जो तीन करंट्स हैं IA, IB, IC, इन तीन करंट्स जो AC नेटवर्क से तीन करंट्स आ रहे हैं IA, IB, IC, इन तीनों से मैंने रेफरेंस सिग्नल्स लिए, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ सोर्स करंट्स हमने किया था ना, जो गेट सिग्नल पे देते हैं, तो उन तीन को लिया। उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद एरर सिग्नल निकाला, एरर सिग्नल को PWM करंट कंट्रोलर में दिया और स्विचिंग सिग्नल्स निकाले। ये स्विचिंग सिग्नल्स ABC जो लेग्स हैं ABC फेज में, उनके लेग्स में जो गेट टर्मिनल्स हैं एडवांस्ड थायरिस्टर्स के, उन पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये VSC जो है ये करंट, ये पर्टिकुलर डी स्टैटकॉम शो कर रहा है, बिकॉज डी स्टैटकॉम इज बेसिकली अ वोल्टेज सोर्स्ड कन्वर्टर। तो ये VSC वही है, और ये DC साइड पे जो कैपेसिटर लगा होता है VSC में वो है। तो ये एक ब्लॉक डायग्राम है जो CCPWM टेक्निक को कैसे अप्लाई करते हैं। अभी जो हमने तीन थ्योरीज पढ़ी उनके ब्लॉक डायग्राम में हमने किया क्या है, PWM टेक्निक ही अप्लाई की है, तभी हमने वो करंट्स निकाले हैं। अब ये उसका एक्सप्लेनेशन है कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, कैसे निकालते हैं वो करंट। तो अब इसमें हमने दो टेक्निक्स पढ़ी। CCPWM कन्वर्टर दो हो सकते हैं, दो तरह के, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर कंट्रोलर चार टाइप के हो सकते हैं। स्टेशनरी PI कंट्रोलर, तो इसको हम रैम कंपैरिजन करंट कंट्रोलर भी कहते हैं। इसमें तीन PI कंट्रोलर्स होते हैं ताकि हम वोल्टेज सिग्नल्स निकाल सकें थ्री फेज साइनोसॉइडल PWM के लिए। PWM की तीन टेक्निक्स पढ़ी थी, SHE, साइनोसॉइडल एंड स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन। सेकंड थ्योरी जो है, सेकंड कंट्रोलर जो है लीनियर कंट्रोलर्स में, वो आता है सिंक्रोनस वेक्टर कंट्रोलर। इट इज ऑल्सो PI कंट्रोलर। इसमें दो PI कंट्रोलर होते हैं एंड दे आर यूज्ड टू ड्राइव द एरर्स इन द DQ कंपोनेंट्स टू 0। इसमें जो एरर्स होते हैं DQ0 करंट्स में, उसको हम 0 तक रिड्यूस कर सकते हैं। स्टेट फीडबैक कंट्रोलर या स्टेशनरी कंट्रोलर्स है। ये जो ऊपर हमने पढ़ा सिंक्रोनस वेक्टर, ये सिंक्रोनसली रोटेटिंग फ्रेम थ्योरी लगेगी इसमें। These are the stationary और synchronously rotating reference frame coordinates। तो हमने ये पढ़ा था SRF थ्योरी में, मैंने बताया था कि कितनी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हैं। Some transformation matrices are applicable on the stationary reference frame also. So here you use state feedback controller। चौथा होता है प्रेडिक्टिव एंड डेडबीट। तो प्रेडिक्टिव का मतलब है कि हम उसमें करंट एरर वेक्टर को पहले ही एस्टिमेट कर लेते हैं कि V कितना एरर है और AC साइड के पैरामीटर्स कितने हैं। और वोल्टेज वेक्टर जो PWM के लिए हम नेक्स्ट स्टेप में जनरेट करेंगे, वो पहले से ही डिटरमिन कर लिया जाता है ताकि फोरकास्ट एरर को हम कम कर सकें। तो प्रेडिक्टिव है, पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं ताकि हम उसको आगे कम कर सकें। डेड बीट कंट्रोलर वो होता है जिसमें हम इस एरर को पूरी तरीके से जीरो कर देते हैं। सो दैट इज नोन एज अ डेड बीट। और एक हमने करंट कंट्रोल CCPWM में दो तरह के पढ़े थे, लीनियर नॉन लीनियर। लीनियर पढ़ लिए। नॉन लीनियर कंट्रोलर भी तीन तरह के हो सकते हैं। हिस्टेरिसिस कंट्रोलर जो कि हमने देखा था ऊपर एक थ्योरी में, डेल्टा मॉड्यूलेशन एंड ऑनलाइन ऑप्टिमाइज्ड। तो हिस्टेरिसिस कंट्रोलर्स हार्डवेयर स्विचिंग यूज होती है, बाकी दोनों में सॉफ्टवेयर स्विचिंग यूज होती है। ये सिंपल होता है, रोबस्ट होता है, ट्रैकिंग एरर्स कम होते हैं, डायनेमिक्स अच्छे होते हैं, पर स्विचिंग स्पीड कम होती है क्योंकि हार्डवेयर स्विचिंग है। बाकी दोनों में सॉफ्टवेयर स्विचिंग है, तो ये थोड़े इफेक्टिव होते हैं। अब हम बात करें कि इस पर्टिकुलर डी स्टैटकॉम में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन हर टॉपिक पे बन सकते हैं। कितने टाइप के कंट्रोलर्स हो सकते हैं, करंट कंट्रोल टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, तो उसमें बेसिक ब्लॉक डायग्राम बताओगे, दो टाइप्स के कंट्रोलर्स बताओगे, उनका बाइफर्केशन बताओगे, और ये जो ब्लॉक डायग्राम है इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करते हैं हम करंट कंट्रोल। और करंट कंट्रोल PWM से करके हम गेट सिग्नल पे ही अप्लाई करते हैं, इसको इन जनरल थ्योरी में यूज नहीं करते। ठीक है, और इसके अलावा बेसिक थ्योरीज पूछी जा सकती हैं। इसकी 3 थ्योरीज वी हैव स्टडीड। So out of those 3 theories, any one of those theory can be asked in the examination. उसके अलावा रिएक्टिव पावर कंट्रोल IRP से ही किया जाता है ना, तो वो कैसे किया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। So all these are important questions and I will take your leave for now. In the next lecture
we'll be studying about the last topic, that is the chapter 8 of PQF. This will compile all the subject content of PQF. Thank you.